Assalamu alaikum, dear students. Hope you are doing fine at your homes. Welcome to the virtual class of English second year. This is lecture number 2 for the chapter number 1, that is the dying sun, which we have yesterday discussed. Today we'll be discussing it furthermore through the text, but before starting the text, I think we should rather recapitulate very quickly that what we have discussed yesterday or in the previous lecture. The very first point which we discussed yesterday was the magnanimous structure of the stars. Writer tells us that stars are very, very big, very huge and immense sort of heavenly bodies. They are so immense that even your imagination is not capable to grasp their vastness. When stars are so big and there are billions and billions, even trillions of stars are present, even more than that are present in the universe. So, how far the universe is being spread? We don't know. The writer is actually telling you that this universe is so vast that we could not trace or we could not demark the limit of the universe. इतनी वास्ट यूनिवर्स है हमारी, इतनी बड़ी यूनिवर्स है कि जिसमें हम इवन पता भी नहीं लगा सकते कि हमारी यूनिवर्स की ये बाउंड्री है या यहाँ ये ख़त्म हो जाती है. Here let me tell you an interesting fact. These astronauts believe, and the people who are, or the scientists who study these heavenly bodies, they say that only 14% of universe is that which we can observe, and that 14% is so huge that we cannot observe it directly. We actually observe uh, with the help of the light and radiation which is coming through those heavenly bodies and through the space. Rest of the 86% we don't know what is that. Why? Because it is not even in our approach. And they also say that universe is not static, it is spreading. यूनिवर्स जो है, कायनात जो है, एक तो ये बहुत बड़ी है, बहुत वास्ट है, इतनी वास्ट कि हम इसको ऑब्ज़र्व भी नहीं कर सकते. इसका 14% हिस्सा हम सिर्फ ऑब्ज़र्व कर सकते हैं. और ये इतनी वास्ट है लेकिन अभी भी ये स्टैटिक नहीं, रुकी भी नहीं, ये फैलती जा रही, मज़ीद वास्टनेस इसमें क्रिएट होती जा रही. Okay, we just got in bit detail. Let's discuss the third point which we discussed yesterday. That was the creation of our solar system, including Earth. Writer is actually telling you that how there was a kind of incident when sun there is a star. Writer tells us that there was a kind of incident when a star came near to the sun and it created a huge tidal waves, and those tidal waves became so huge that sun could not retain those tidal waves. So what happened in the end, it and that waves or the mountainous waves, they just got torn apart from the sun. इतनी बड़ी एक लहर और लहरें पैदा हुई सन के ऊपर कि वो इतनी बढ़ गई कि सन उनको काबू में नहीं रख सका, क्योंकि जो सितारा उसके पास आ रहा था सन के, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा थी. और जनाब वो जो हमारी वेव थी, माउंटेनियस वेव, वो उससे टूट कर कई टुकड़ों में बिखर गई. एंड व्हाट हैपेंड व्हेन इट वाज shredded, it started, all the pieces started revolving around the sun, क्योंकि सन की अपनी ग्रेविटेशनल पुल होती है जिसकी वजह से वो उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करना शुरू कर देते हैं. So till yesterday we have discussed all these 3 points, and now let's resume our lecture from where we have left. Okay, so you better open up your books, and we are reading. It is paragraph number 4. The sun and the other star we see in the sky are all extremely hot, far too hot for life to exist on them. Writer is telling you that sun and all the other stars, they are very hot. And why they are very hot? Because they are actually the mass of burning gases. ये जो स्टार्स हैं, सितारे हैं, ये बेइंतहा गर्म हैं, और बेसिकली इनका जो मास होता है, मटेरियल है, ये क्या है, ये किस चीज़ से बने हुए? बेसिकली ये मजमुआ होता है जलती हुई गैसों का. और जनाब
ये इनका टेम्परेचर इतना हाई होता है कि यहाँ पे किसी भी किस्म की कोई लाइफ जो है इट कैन नॉट सस्टेन ओवर देयर, लाइफ कैन नॉट सस्टेन इन दैट टेम्परेचर, इतने शदीद टेम्परेचर में ज़िंदगी जो है वो पनप नहीं सकती. So also no doubt they were the pieces of the sun when they were first thrown off, and same was the case with the pieces we have just discussed. हमने अभी अभी डिस्कस किया ना वो पीसेस सन में से जो निकले थे. Now it is common sun because they had been torn apart from the sun, so they were also as hot as the sun was. जितना सन गर्म था, सूरज जितना गर्म था, उतने ही गर्म उसके सारे हिस्से थे. लेकिन क्या हुआ, बिकॉज दे वर स्मॉलर इन साइज, सो लिटिल बिट they were very smaller in size as compared to the sun. So what happened, slowly and gradually they started cooling down. बहुत सालों बाद उन्होंने क्या किया, ये सारे जो पार्ट्स थे उसके ये आहिस्ता आहिस्ता ठंडे होने लगे. बहुत सालों से मेरी मुराद है बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स, करोड़ों लाइट ईयर्स लगे और उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता ठंडे होना शुरू हो गए. So also no doubt were the pieces of the sun when they were first thrown off. Gradually they became cooler until now they have very little heat of their own left, their warmth coming almost entirely from the radiation which the sun pours down on them. Now a point came when all these parts of the sun were not able to produce their own heat. आहिस्ता जब ये ठंडे होने लगे तो फिर क्या हुआ, एक पॉइंट ऐसा आया कि इनकी तमाम हीट जो है वो ख़त्म हो गई. ठीक है, अब ये सिर्फ क्या है, रॉक्स का, चट्टानों का एक मजमूआ है, ठीक, जो कि ठंडा है, जिसमें किसी किस्म की हीट जो है वो मौजूद नहीं है. बट स्टिल टुडे देयर आर सर्टेन planets are actually the pieces which we are talking about. तो ये जो सैयारे थे, ये जो planets थे, ये ठंडे हो गए. एंड दीज स्टिल व्हाट आई एम टेलिंग यू दैट स्टिल देयर आर सर्टेन प्लैनेट्स व्हिच आर वेरी हॉट. एंड व्हाई दे आर वेरी हॉट, not because of their own heat but rather they are receiving it from the sun. Now these planets are a bit nearer to the sun, so they get more heat. कुछ सैयारे ऐसे हैं जो सन के करीब हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर उनको बहुत ज़्यादा हीट मिलती है, बहुत ज़्यादा लाइट मिलती है, तो वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं. एंड अगेन देयर आर सर्टेन प्लैनेट्स विच आर वेरी कूल. कुछ ऐसे हैं जो बेइंतहा ठंडे हैं, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत नीचे गिरा हुआ है. वाई, बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम द सन. जैसे आपका प्लूटो हो गया, बहरहाल अब हम इसे सैयारा में शुमार नहीं करते. प्लूटो चूँकि सन से बहुत दूर है, तो लिहाजा ये तारीक है और ठंडा है. तारीक मीन्स देर इज़ नो लाइट ओवर देयर, देर इज़ नो heat over there. Got this? So whatever heat the planets are having right now, it is not their own heat, it is rather the heat of the sun which is being thrown on them. Now in course of time, one of those cooling pieces gave birth to life. The most important or most interesting event happened in the history of universe was that during this cooling process, one of the planet, it succeeded to attain a temperature or an environment which could support life. जब ये ठंडे हो गए तो इन सैयारों में से एक सैयारा ऐसा था जिसके अंदर एक ऑप्टिमम टेम्परेचर मौजूद था, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे लाइफ पनप सकती थी, और एक ऐसा एनवायरनमेंट था कि जो लाइफ को अपने अंदर समो सकता था या उसको शुरू करवा सकता. एंड दिस हैपेंड, लाइफ स्टार्टेड, एंड दिस प्लैनेट वाज नॉट एनी अदर प्लैनेट बट आवर होम अर्थ. वी डू नॉट नो हाउ, हम नहीं जानते कि ज़िंदगी कैसे शुरू हुई. व्हेन और व्हाई दिस हैपेंड, कब हुई और क्यों हुई. वी डोंट नो द रीजंस बिहाइंड इट, हमें नहीं पता कि इसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं. But let me tell you something important is that this essay has been written, I think, quite earlier. Now we have little bit knowledge of why, when and how the life was created. साइंसदान अभी हमें रीसेंट स्टडीज़ हमें बताती हैं कि लाइफ किस तरह क्रिएट हुई होगी, दो देयर इज़ नो फाइनल थ्योरी. बहरहाल राइटर यहाँ कह रहे हैं कि हमें नहीं पता कि ज़िंदगी कैसे शुरू हुई, कब शुरू हुई, व्हाट वाज द पॉइंट
when the first living cell was was emerged, we don't know. Okay, it started in a simple organism. लेकिन हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि इट मस्ट हैव बीन वेरी सिंपल, और इट मस्ट हैव स्टार्टेड विद अ वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म. साइंसदान ऐसा बिलीव करते हैं, साइंस ऐसा बिलीव करती है कि ज़िंदगी जो है वो यकलख्त ऐसे ही नहीं शुरू हो गई होगी कि हर ऑर्गेनिज्म एकदम से प्रोड्यूस हो गया. इट मस्ट हैव स्टार्टेड फ्रॉम अ वेरी वेरी माइन्यूट ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जांपल सिंगल सेल. सबसे पहले ज़िंदगी जो आई होगी या ज़िंदगी जो प्रोड्यूस हुई होगी वो एक सिंगल सेल प्रोड्यूस हुआ होगा. वो आहिस्ता आहिस्ता डिवीजन करके उसने कोई बहुत ही सिंपल एक प्रोकैरियोट सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म बना लिया होगा. प्रोकैरियोट मतलब जिसमें सिर्फ न्यूक्लियस होता है, कोई ख़ास फंक्शन नहीं करते हो. आहिस्ता आहिस्ता यही यूनिसेलुलर बने होंगे, फिर मल्टी सेलुलर, एंड देयर इज़ अ होल प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन जो हमारे पास एक इर्तका का पूरा नज़रिया है कि जिसमें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ऑर्गेनिज्म पहले बहुत सिंपलर थे, फिर उससे थोड़े पेचीदा हुए, एंड देन दे बिकेम वेरी कॉम्प्लेक्स एंड इवन ह्यूमन वर प्रोड्यूस्ड. We do not we do not know how, when, or why this happened. It started in simple organism whose living power consisted chiefly in their being able to reproduce themselves before dying. अब what made life to sustain? आखिर वो क्या चीज़ थी जिसने ज़िंदगी को बरकरार रखा हमारे इस अर्थ पर, और वो थी देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस देयर यंग वंस. एक जो सिंगल सेल पैदा हुआ था, आखिर उसको भी तो मर ही जाना था, लेकिन उससे पहले कि वो सेल ख़त्म हो जाता वो मज़ीद अपने जैसे कई सेल बना चुका था. ठीक है, तो ये जो प्रोडक्शन का और रिप्रोडक्शन का एक साइकिल है, इसने ज़िंदगी को क्या रखा, ज़िंदा रखा हमारे अर्थ पर, और यही इसकी चीफ क्वालिटी थी जिसकी वजह से ये यहाँ पर सस्टेन हो पाए. But from the humble beginnings came a stream of life which growing ever more and more complex. I have just discussed this. मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह एक सिंपल से सेल से जो ज़िंदगी ओरिजिनेट हुई, इट बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स एंड मोर कॉम्प्लेक्स, और फिर आहिस्ता आहिस्ता देयर हैज़ बीन ह्यूज डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. आप देखें हमारे पास मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की. आप प्लांट्स उठा लें, वहाँ बेतहाशा पौधे हैं और उनकी स्पीशीज़ हैं. इसी तरह जानवरों में भी बहुत डाइवर्सिटी, बहुत तनू पाया जाता है. हर किस्म के जानवर जो हैं मिलते हैं, लेकिन इन सब की बेसिक आगाज़ जो हुआ वो कहाँ से हुआ? ये बेसिकली उसी सिंगल सेल से आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन के प्रोसेस के थ्रू ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम, एंड दिस टाइम हैड बीन वेरी ह्यूज टाइम. इट टुक बिलियंस ऑफ ईयर्स. हमें बिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं आज ज़िंदगी को जिस शक्ल में हम देखते हैं. Now the writer is telling you that this process of organisms becoming more complex led to the creation of a being or a living organism whose lives are largely centered on their feeling and ambitions, their sense of beauty, and the religions in which lie their highest hopes and noblest desires. We are right now on the page 2. Okay, so now here the writer is talking about the human beings. एक ऐसी इसी ज़िंदगी ने, इसी सिंगल सेल ने एवोल्यूशन के प्रोसेस के बाद एक ऐसी ऑर्गेनिज्म को, एक ऐसी स्पीशी को जन्म दिया जो स्पीशी क्या रखती है, कॉन्शियसनेस का हाईएस्ट लेवल रखती है, और जिसकी वजह से उसके पास फीलिंग्स हैं, और जिसकी वजह से उसके पास एम्बिशंस हैं. वो अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ मकासद जो है वो सेट करता है. द सेंस ऑफ ब्यूटी, दे कुड अप्रिशिएट ब्यूटी एंड द रिलीजन, और उनके पास मज़हब का एक या देवमालाई मज़हब का एक तसव्वुर मौजूद है, या वो ऐसा समझते हैं कि जो क्रिएटर है, इस यूनिवर्स का क्रिएटर है, वो कोई एक सुपर नेचुरल बीइंग है. इन विच लाई देयर हाईएस्ट होप, और इसी रिलीजन में उनकी हाईएस्ट होप है. आप हम भी अपने ऊपर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं. सी वी सफ़र टू मच
within the life. We suffer so many things within the life, but we remain satisfied, we remain calm, because we know that in the life hereafter we will be given reward, or there is a creator who actually take care of us and who actually listens. तो हमारी जो होप्स हैं, जो हमारी सारी ज़िंदगी के दारोमदार हैं हमारी रिलीजन पे, एंड नोबलेस्ट डिज़ायर्स, और हमारी जो डिज़ायर्स हैं, नोबलेस्ट डिज़ायर, उनका दारोमदार किस चीज़ पे है? रिलीजन पे, सेंस ऑफ ब्यूटी पे, एम्बिशंस पे एंड फीलिंग्स पे. Now this is para number 5 we are reading. Although we cannot speak with any certainty, it seems more likely that the human race came into existence in some such way as this. वो कहते हैं हम सर्टेनिटी के साथ, यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकते कि कब कहाँ कैसे ह्यूमन रेस बनी और कैसे उसमें ये तमाम कॉन्शियसनेस आई, बट दिस वाज द वे, यही वे था एवोल्यूशन का वे. सिंपल unicellular organisms, multicellular, more complex, and then evolution went on till it gave birth to human being. Okay, standing on our little grain of sand. Now you could recall the analogy which writer has created in the first two paragraphs. आपके जहन में आएगा कि कल हमने डिस्कस किया था, राइटर आपको मेटाफर से बता रहा था कि हमारी जो दुनिया है वो ऐसी है कि कायनात जो है वो ओशन की रेत है, और उस रेत में जो एक ज़र्रा है वो क्या है? वो अर्थ है, और हमारी दुनिया है वो हमारा होम है. So here he is also referring to that analogy, and he is saying, standing on our lands, on our little grain of sand. आज हम खड़े हैं अपने उस छोटे से रेत के सर्रे पर. We try to discover the nature, but we try to discover the whole nature and purpose of the universe which surrounds our home in space and time, and we try to think about what have been the purpose, what could have been the purpose to create such universe, and we are also trying that whether there is life on the other planets or not. साइंसदान बहुत कुछ जो है एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दे आर क्वाइट सक्सेसफुल टू. उन्हें पता भी लगता जा रहा है कि आप देखें, हमारा जो सोलर सिस्टम है जिसमें अर्थ मौजूद है और बाकी 9 प्लैनेट्स हैं जो सन के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, ये कोई एक अकेला नहीं, इस तरह के कितने ही करोड़ों सोलर सिस्टम्स जो हैं और सैयारों के जो सिस्टम है, ये मिलके एक गैलेक्सी बनाते हैं. हमारी गैलेक्सी जिसमें हमारा होम मौजूद है, अर्थ मौजूद है, इसको हम मिल्की वे कहते हैं. एंड द नियरेस्ट और द नेबर गैलेक्सी इज़ कॉल्ड एंड्रोमेडा. हमसे करीब जो गैलेक्सी मौजूद है इसको एंड्रोमेडा कहा जाता है. ये सब चीज़ें हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, कहाँ खड़े होके? वही एक छोटे से रेत के ज़र्रे पर खड़े हैं, और वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर. वी आर रादर, इवन आई बिलीव दैट ह्यूमंस आर गोइंग टू फार. बहुत इनकी, जैसे आप देखें ना, इकबाल कहते हैं उरूज आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं. कहते हैं आदम खाकी, ये मिट्टी से बना हुआ पुतला इंसान है, और इसका उरूज जो है, मतलब ये इतना तरक्की कर रहा है कि अंजुम मतलब ये सितारे ये सहमे जाते हैं. क्यों सहम जाते हैं? वो कहते हैं कि ये टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन जाए, कि एक तारा टूटा हुआ, यहाँ से रेफरेंस है किस पर?